The name of the name of unit is transition inner transition element, and this type of question will be asked in the examination. Why zinc show only +2 oxidation state? And you know that the atomic number of zinc is 13. It means that in the nucleus of zinc atom total 13 protons are present. So the atomic number of zinc is 13. 13 electrons around the nucleus are present in 4 different shells in this way. And this is the valence shell or last shell of zinc, that is the fourth shell, which is designated by the capital N letter. And you can see this is the 4s2, the valence shell electronic configuration. And this 2 electron only lost zinc atom and then achieve +2 oxidation state. And you can see this penultimate shell. In this penultimate shell 3d10, it means that this is the stable completely filled 3d orbital. This is completely filled orbital and stable orbital. So 3d orbital containing electron do not participate in the chemical reaction, and so the zinc only show +2 oxidation state. This is the reason behind it. देखिए यूनिट का नाम है ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. वाई जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिंक जो एटम है वह ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, जैसे कि +3 +4 +5. ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. इसके पीछे क्या रीज़न है? तो इसके पीछे रीज़न यह है, हमें मालूम है पेरियोडिक टेबल में जिंक का एटॉमिक नंबर 13 है. इसका मतलब है कि जिंक के न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स है और अराउंड द जिंक न्यूक्लियस, मतलब जिंक न्यूक्लियस के बाहर 4 शेल्स प्रेजेंट होती है. फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल. और 4 शेल में 4s2 मतलब यस ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. तो सिर्फ 4s2 मतलब जो 4 शेल में जो प्रेजेंट यस ऑर्बिटल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वही जिंक लॉस करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करता है. उसके नीचे की जो शेल है जिसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, जिसमें 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जो डी ऑर्बिटल है यह कम्प्लीटली फिल्ड है. और हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है कि जो अगर डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो तो वह स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं. इसलिए यह स्टेबल होने के कारण केमिकल रिएक्शन में 3d ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते और इसीलिए जो जिंक है वह 4s ऑर्बिटल में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. इस तरह से इसका आंसर होगा. This is the general electronic configuration of zinc. We know that this is the zinc. This 30 indicate that the atomic number of zinc. It means that zinc atom nucleus containing 30 protons. So the atomic number of zinc is 13. This 65 indicate that the atomic mass of zinc. Atomic mass means the sum of proton and neutron. It means that in the nucleus of zinc total 30 proton and almost 35 neutrons. So the atomic of mass zinc is 65. Memorize this. And around the zinc nucleus there are total 4 shells present. First cell, this is n is equal to 1. It means that this is first cell.
which is designated by capital K letter. This is the second shell. The number is n is equal to 2 and designated by L capital letter. This is the third shell. This is the number third and designated by the capital M letter. And this is the fourth shell. This is number 4 and designated by the capital N letter. Then this is the electronic configuration of zinc, or we can say that this is the general electronic configuration of neutral zinc atom. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2. Now this valence shell, this is the valence shell or last shell. That is the fourth shell of zinc, and valence shell of zinc contain 2 electron in 4s subshell, and these 2 electron can lose the zinc when shows chemical reaction and form the new molecule like zinc oxide. Because of the loss of these 2 electron, zinc only show +2 oxidation state, and this other electron cannot take part in the chemical reaction. You can say that this is the 3d10. D10, it means that this is the completely filled D shell. You can see below. This is 3d10. It means that this is the completely filled. You can see that this is completely filled 3d orbital. Because of this completely filled orbital, all electron have the same spin. You can say that 5 electron in the clockwise direction and 5 electron in the anti-clockwise direction. And the parallel spin electron can exchange their position. And because of exchange their position, the energy released from this 3d orbital, and because of the energy release, this 3d completely filled orbital achieve more stability compared with the partially filled 3d orbital. And scientists told us that the half filled d orbital and completely filled d orbital are more stable compared with partially filled d orbital, and here the 3d orbital is completely filled. Because of exchange energy means this parallel spin electron can exchange their position, and due to this activity the energy is released, and this is called as exchange energy. And because of this process, this 3d orbital show more stability, and because of more stable 3d orbital, this electron in 3d orbital cannot take part in the chemical reaction, and so only 4s electron can take part in the chemical reaction, and 4s containing 2 electron. So zinc lost these 2 electron and only show +2 oxidation state. This is the reason behind it why zinc atom show only one oxidation state. देखिए यह जिंक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपको मालूम है जिंक एटम पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। 30 एटॉमिक नंबर, इसका मतलब है कि जिंक का जो न्यूक्लियस है उसमें 30 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। यह जिंक का एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास मतलब द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमें मालूम है कि जो जिंक का जो न्यूक्लियस है उसमें 13 प्रोटॉन्स है और 35 न्यूट्रॉन्स है, इसलिए 30 + 35 इज इक्वल टू 65, इसलिए इसका एटॉमिक मास 65 होगा। जिंक का जो न्यूक्लियस है उसके बाहर 4 शेल्स प्रेजेंट होते हैं, आप देख सकते हैं। यह फर्स्ट सेल है जिसे हम नंबरिंग देते हैं, फर्स्ट नंबर जिसे के कैपिटल के लेटर से दिखाया जाता है। यह सेकंड शेल है जिसे कैपिटल एल लेटर से दिखाया जाता है। यह थर्ड शेल है जिसे कैपिटल एम लेटर से दिखाया जाता है। यह फोर्थ शेल है जिसे हम कैपिटल एन लेटर से दिखाते हैं। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा न्यूट्रल जिंक एटम का
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। तो हमें क्वेश्चन यह पूछा गया है कि जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है। इसका रीज़न यह है कि यह जिंक का लास्ट शेल है या वैलेंस शेल है, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ जिंक लॉस करता है, और इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अगर हम इसके नीचे वाले शेल्स को देखें, जिसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, तो इसमें जो 3d ऑर्बिटल है, यह कम्प्लीटली फिल्ड है। और हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जो 3d ऑर्बिटल अगर कम्प्लीटली फिल्ड हो तो वह मोर स्टेबल होता है, और यह मोर स्टेबल होने के कारण केमिकल रिएक्शन में 3d ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वह पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका रीज़न यह है कि हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि जब 3d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन है, यह इनकी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं कंटिन्यू, जिसे हम एक्सचेंज एनर्जी भी कहते हैं। और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है पोजीशन चेंज करने के वजह से, और इससे यह जो 3d ऑर्बिटल है यह मोर स्टेबल बन जाता है। और यह मोर स्टेबल बनने के कारण यह 3d ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, और इसी तो फिर सिर्फ बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4s सबशेल में के जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिंक के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर जिंक ऑक्साइड मोलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कंपेयर्ड विद जिंक, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यह 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और बाद में जिंक यह 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कारण +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करेगा। तो यह जो फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल में के जो इलेक्ट्रॉन है, यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ 4s सबशेल में के 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस करता है, और इसीलिए जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इस तरह से हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया है। देखिए, यूनिट का नाम है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस यूनिट पर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई जिंक शो ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको मालूम है जो अदर एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वह डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2। तो ऐसा क्यों, इसका रीज़न आपको पूछा जा सकता है, और इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फॉर 2 मार्क्स। तो आपको सबसे पहले नॉर्मल या न्यूट्रल जिंक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, दैट इज जिंक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। आपको मालूम है कि जो जिंक का जो न्यूक्लियस है उसमें 13 प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए जिंक का एटॉमिक नंबर 13। जिंक का जो एटॉमिक मास है वो 65। एटॉमिक मास का मतलब क्या है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिंक का जो न्यूक्लियस है उसमें 13 प्रोटॉन है और 35 न्यूट्रॉन्स है, इसलिए जिंक का एटॉमिक मास हुआ 65। जिंक का जो न्यूक्लियस है उसके जो सराउंडेड 4 शेल्स होती है। जो पहली शेल है उसे हम n=1 कहते हैं, जिसे कैपिटल K लेटर से दिखाया जाता है। जो सेकंड शेल है उसे हम n=2 मतलब सेकंड नंबर, और जिसे कैपिटल L लेटर से दिखाया जाता है। जो थर्ड शेल होती है जिसे हम थर्ड नंबरिंग देते हैं n=3, जिसे कैपिटल M लेटर से दिखाया जाता है। और जो लास्ट शेल है n=4 मतलब फोर्थ नंबर की शेल, जिसे कैपिटल N लेटर से दिखाया जाता है। जो लास्ट शेल है या वैलेंस शेल है उसमें 4s2, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस करता है जब किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ केमिकल रिएक्शन करके मोलिक्यूल बनाता है, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड मोलिक्यूल। इसके नीचे वाली जो शेल है जिसे हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, जिसमें 3d10 है। आपको मालूम है जब हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया जब d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो,
तब वह मोर स्टेबल होती है कंपेयर्ड विथ पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल। इसके पीछे हमें रीज़न बताया साइंटिस्ट लोगों ने कि जब पैरेलल स्पिन इलेक्ट्रॉन, सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन है वह कंटिन्यू अपनी पोजीशन चेंज करते हैं डी ऑर्बिटल में, जिसे एक्सचेंज एनर्जी भी कहते हैं। और कंटिन्यू सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यू अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने के कारण वह मोर स्टेबल बन जाते हैं। हमें मालूम है 3d10, इसका मतलब क्या है कि 3d ऑर्बिटल जिंक में कम्प्लीटली फील्ड है, और कम्प्लीटली फील्ड होने के कारण यह मोर स्टेबल है, और मोर स्टेबल होने के कारण यह 3d ऑर्बिटल केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसीलिए जो बचा हुआ है वैलेंस शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, यही 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लॉस करता है और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए 2 मार्क के लिए, तो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है न्यूट्रल जिंक एटम का, और आपको यह सेंटेंस लिखना है कि जिंक ओनली लॉस वैलेंस शेल containing 4s orbital, and that 2 electron present in 4s orbital, zinc only lost that 2 electron, and so zinc show only +2 oxidation state. And in the penultimate shell of zinc, 3d orbital is completely filled, and because of completely filled 3d orbital, the 3d orbital is more stable, and so the electron present in 3d orbital cannot participate in the chemical reaction, and so zinc show only +2 oxidation state. आपको इस तरह से आंसर लिखना है, और जिंक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आपको आउट ऑफ 2 मार्क मिल जाएंगे।